عالم اسلام پر اپنی رائے دینے کے لیے آج ہمارے درمیان ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر آفتاب کمال پاشا صاحب۔ پاشا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے آج عالم اسلام اس ہفتے میں، اور آغاز کرتے ہیں افغانستان سے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ افغانستان میں تشدد کے دوران گزشتہ سال 10,000 سے زائد شہری یا تو مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جاری تشدد سے وہاں کا ہر شہری متاثر ہوا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان کے لیے گزشتہ سال کافی خون ریز رہا۔ یو این رپورٹ کے مطابق افغانستان میں تشدد کے دوران گزشتہ برس 10,000 سے زائد شہری یا تو مارے گئے یا زخمی ہوئے تھے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے اور افغانستان کے لیے یو این میں امدادی مشن کے سربراہ یاماموتو نے رپورٹ کا حوالہ دے کر کہا کہ افغانستان میں جاری تشدد سے وہاں کا ہر شہری متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ افغانستان اینول رپورٹ آن پروٹیکشن آف سویلین آرمڈ کنفلکٹ نام سے شائع اقوام متحدہ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ افغانستان میں گزشتہ سال 3,403 شہری مارے گئے اور 6,989 زخمی ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ سال 2019 میں افغانستان میں شہریوں کے ہلاک ہونے کی تعداد نے ایک ریکارڈ بنا دیا ہے۔ افغانستان میں اس دوران 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امدادی مشن کے سربراہ یاماموتو نے کہا ہے کہ تمام فریقوں کو جنگ روکنے کے لیے پہل کرنی چاہیے کیونکہ امن طویل عرصے تک برقرار رہتا ہے۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے نتیجے میں ہم 19 برس بعد اپنے فوجی جوانوں کو ملک واپس لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی فوج کو کم کر کے 8,600 تک لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فی الحال 13,000 امریکی فوجی افغانستان میں موجود ہیں۔ بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو۔ پروفیسر پاشا، یہ جو افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم پوری دہائی کی بات کریں تو تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہیں تشدد کا شکار ہوئے ہیں، اور گزشتہ برس اگر دیکھتے ہیں تو طالبان کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اور ادھر طالبان کے ساتھ امریکہ کا سمجھوتا کسی نتیجے پر پہنچنے والا ہے۔ دوسری جانب اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان کا جو تنازع ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ افغانستان میں پورا معاملہ بکھرا سا ہی ہے؟ پچھلے 19 سالوں میں جو سویلین اور ملٹری اور پولیس فوج کے جو نمائندے وہاں شہید ہوئے ہیں، ان کی ایکچول تعداد کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کہ افغان گورنمنٹ کے پاس، نہ طالبان کے پاس، نہ یو این کے پاس، اور یہ جو آنکڑے ہیں الگ الگ نمبرز بتاتے ہیں، لیکن زیادہ تر 2/3 سے زیادہ وہاں سویلین کی موت ہوئی ہے اور اس سے 5 گنا زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایئر اسٹرائک ہوتی ہے، مس ججمنٹ ہوتا ہے، اس میں بھی کافی لوگ، گزشتہ برس بھی 1000 کے قریب لوگ اس میں بھی مارے گئے ہیں۔ جی اسکول میں بھی شادی کا جو ایک وہ تھا اس میں بھی ہوا تھا۔ جی، شادی کا ہو یا جب لوگ دفن کرنے بھی جاتے ہیں اس پہ بھی حملے ہوتے ہیں، اور پورے خریے کے خریے بمباری سے اڑا دیے جاتے ہیں، شک میں کہ یہاں طالبان چھپے ہیں۔ تو یہ پورے علاقے میں اور خاص طور پہ ایسٹ میں، مشرق میں کئی ہزار مکان بمباری کی وجہ سے برباد کر دیے گئے، پورے علاقے نیست و نابود ہو گئے۔ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ یہاں کچھ نہیں کر پا رہی، وہ آواز اٹھاتی ہیں، یو این ہیومن رائٹس کونسل کو وہ انفارمیشن دیتی ہیں باقاعدہ، لیکن یہ ایک طرفہ میڈیا وار ہو رہی ہے۔ جو نیٹو فوج اور امریکی سپاہی اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کا کہیں کبھی ذکر ہی نہیں ہوتا، اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پوچھ تاچھ کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے۔ جب طالبان وہاں حملہ ہوتا ہے تو پورے دنیا میں اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ جو بیلنس، جو کوریج ہونا چاہیے، افغانی حکومت کی طرف سے بھی یہ دشواری ہے، اور پوری دنیا میں یہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ اب یہ جو امریکہ کا طالبان کے ساتھ سمجھوتا، ٹرمپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ وہاں پہ جو
जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ थी वो गुज़िश्ता दिनों में कम हुई हैं, तालिबान ने शायद हमले कम कर दिए हैं, तो क्या इसका असर पड़ेगा इस पर? जी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि तालिबान का एक ही मकसद है और वो ये है कि जल्द से जल्द काबुल अपने कब्जे में ले लें। ये तालिबान अब पाकिस्तान के साथ नज़र आता है या हिंदुस्तान का भी वहाँ पे कोई रोल होगा? ज़्यादातर पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है मिलिट्रीली और फाइनेंशियली, तो जो हमारी वहाँ पे तरक्की की जो हम वहाँ पे जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी वगैरह में, तो क्या उस पर कहीं रोक लगेगी? हिंदुस्तान को क्या तालिबान से भी बात करनी पड़ेगी आगे चल के? अभी तक तो हिंदुस्तानी हुकूमत इनसे बात करने गुरेज कर रही है, लेकिन आगे चल के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करना है, वहाँ हमारे जो इंजीनियर्स हैं और पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय जो कर रहे हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए, और हमारा असर और रसूख अफ़गानिस्तान में बाकायदा वहाँ रिटेन करने के लिए तालिबान से ज़रूर मेरे ख्याल से बात करनी होगी। इनफॉर्मली साइंस आ रहे हैं कि हो चुकी है बात, तो लेकिन ऑफिशियली उसको मानना नहीं चाहते हो। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं आलम इस्लाम इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर की तरफ। रूस ने शाम के शुमाल मशरक़ी सूबे इदलिब में जंगबंदी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने बागियों के साथ जंगबंदी के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। उधर इसराइल ने गजा और शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब इतवार और पीर की दरमियानी शब फ़ज़ाई कार्रवाई की है। इसराइली अफ़वाज की शदीद बमबारी में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। देखिए। शाम के हलीफ रूस ने इदलिब में जंगबंदी के किसी भी इम्कान को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि वो दहशतगर्द बागियों के साथ जंगबंदी पर कभी भी रजामंद नहीं होगा। सरगेई लारोफ ने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि रूस इस तरह की जंगबंदी के इम्कान को मुस्तरद करता है, क्योंकि जंगबंदी से दहशतगर्दों की तरफ से बैनुल-अक़वामी उसूलों की सरीह खिलाफ वर्जी जारी रखने में उनकी हौसला अफजाई होगी। लारोफ ने कहा कि ये कोई इंसानी हुकूक का मामला नहीं है, ये दहशतगर्दों के सामने घुटने टेकने और उनकी कार्रवाइयों के लिए इनाम से नवाजने के मुतरादिफ होगा। रूस और तुर्की शाम में जारी खाना जंगी में मुतहर्रिब धड़ों की हिमायत कर रहे हैं। रूस तुर्की पर इदलिब से इंतहा पसंद जंगजू ग्रुपों को हटाने के लिए जोर देता रहा है। शाम में बागियों के आखिरी गढ़ समझे जाने वाले इलाके इदलिब में शामी फौजी और बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। 25 फरवरी को भी लड़ाई में मुताद्दिद शहरी मारे गए, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इदलिब में मंगल के रोज कम से कम 19 शहरी मारे गए। शामी हुकूमत की तरफ से फ़िज़ाई हमलों और भारी तोपों से गोलाबारी से हलाक होने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब तुर्की के हिमायत याफ्ता बागियों का कहना है कि उन्होंने इदलिब के करीब नेरब कस्बे से रूसी हिमायत याफ्ता शामी फोर्सेस को पीछे ढकेल देने के बाद उस पर कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क और गजा पट्टी में इतवार और पीर की दरमियानी शब फ़िज़ाई कार्रवाई की है। इसराइली अफवाज की शदीद बमबारी में मुतादिद अफराद हलाक हो गए। इसराइली फौज का दावा है कि उसने गजा की पट्टी से होने वाले रॉकेट हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर पाशा, शाम में इसराइल का भी कुछ नहीं है, रूस का भी कुछ नहीं है, इनकी सरहदें भी नहीं मिलती हैं, उसके बावजूद ये लोग वहाँ पर क्यों मौजूद रहना चाहते हैं किसी न किसी शक्ल में? रूस असल में वहाँ तारतूस और लताकिया बोल के पोर्ट्स हैं जिसमें वो अपनी नेवी तैनात कर रहे हैं और एयरफोर्स भी है, और वो किसी हालत में उसको बरकरार रखना चाहते हैं स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिक्स की तरह। दूसरा इंटरेस्ट ये है कि जो मुस्लिम एरियाज हैं रूस के, जैसा चेचनिया है, दागिस्तान है, इंगुशेशिया है, वहाँ से हज़ारों की तादाद में सीरिया में, शाम में बागी बन के वो असद हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और काफ़ी ट्रेनिंग भी दी गई है CIA और दूसरे इजरायली फोर्सेस और टर्की के भी फोर्सेस से उनको ट्रेन करके दिया गया है। और तीसरी बात यह है कि शाम ऐसा मुल्क है जिसके तहत रूस अपना असर और रसूख इस पूरे क्षेत्र में एरिया में बढ़ाना चाहता है। तो हम देखते हैं ना, जब इनकी कोई अमन की मुज़ाकरात होती है तो उसमें रूस होता है, ईरान होता है, फ्रांस भी होगा, तुर्की भी होगा, शाम कहीं नज़र नहीं आता। तो मतलब जिसका मुल्क है उसके बारे में दूसरे लोग फैसला करते हैं। वो इतने कमज़ोर हो गए हैं और इतने निर्भर हो गए हैं रूस के ऊपर मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए
तो वो बैकग्राउंड में हो गए हैं। और इजराइल का भी इंटरेस्ट ये है कि वहाँ किसी हालत में ईरान इन्फ्लुएंस बढ़ा ना सके, ना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हिजबुल्लाह को उन्होंने करके वहाँ अपना अड्डा बना लिया है उस तरह से रोकना चाहते हैं। ईरान चाहता है ईरान और इराक और सीरिया और लेबनान को मिला के मेडिटेरेनियन को जो लिंक करना चाहते हैं वो उसको वो बागडोर तोड़ना चाहते हैं इसराइल। मतलब ये जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ मौत ही मौत दिखाई देती है और अमन और सुकून की तलाश में लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बहार अरब हुई थी, उसके बाद मिस्र के सदर जो है हुस्नी मुबारक हट गए थे, उनका इंतकाल हो गया। मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक को बुध के रोज़ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद हुस्नी मुबारक का मंगल के रोज़ तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। हुस्नी मुबारक की उम्र 91 साल थी और वो एक तवील अरसे तक मिस्र के सदर के ओहदे पर भी फाइज रहे थे। देखिए रिपोर्ट। मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक को बुध के रोज पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मिस्र के साबिक फौजी आमिर हुस्नी मुबारक तवील अदालत के बाद मंगल के रोज इंतकाल कर गए थे। वो मिस्र पर 30 बरस से जायद अरसे तक हुकूमत करते रहे थे। मिस्र की मनसब सदारत पर 30 बरस से जायद अरसे तक विराजमान रहने वाले हुस्नी मुबारक ने सदर का ओहदा अनवर सादात के कत्ल होने के बाद संभाला था। वो मिस्र के चौथे सदर थे। मकतूल सदर अनवर सादात के दौर में वो नायब सदर और वजीर आजम भी रहे। मिस्र में सन 2011 में होने वाले शदीद मुजाहरों के बाद हुस्नी मुबारक को अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा था। हुस्नी मुबारक को सेहत के मुख्तलिफ अवारिस का भी सामना रहा। सन 2011 में मिस्री इंटेलिजेंस जराये ने बताया था कि वो मैदे के कैंसर में मुब्तला हैं, लेकिन खबर आम होने पर मिस्री हुकूमत ने तरदीद की थी। वाज़ेह है कि अरब स्प्रिंग नामी अवामी तहरीक के सिलसिले में इक़्तिदार की महरूमी के बाद वो पहले ऐसे हुक्मरान थे जिन्हें अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा। हुस्नी मुबारक की हुकूमत के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के दौरान 850 के करीब अफराद हलाक और 6000 से जायद जख्मी हुए थे। उन पर सबसे पहला मुकदमा अवामी तहरीक के दौरान बेगुनाह अफराद पर गोलियां चलाने का बनाया गया था। उन्हें बदउनवानी के इल्जामात की मुकदमात का भी सामना रहा था। सन 2014 में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान उस वक्त की फौज के कमांडर और अभी मौजूदा सदर अब्दुल फतेह अल-सीसी पर एतमाद का इजहार करते हुए उनके मुल्क की सदारत संभालने की हिमायत की थी। उन्होंने कहा था कि अवाम अल-सीसी को सदर देखना चाहते हैं और अवामी ख्वाहिश पूरी होकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सूडान में सियासतदानों की बदउनवानी कहत का सबब बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बदउनवानी और सियासी चपकलिशों की वजह से सूडान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जन्म ले रही हैं। देखिए रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के ओहदेदारों का कहना है कि सूडान में सियासी बदउनवानियों का बोलबाला है और सियासी मुखासमत अपने उरूज पर है, जिसकी वजह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जन्म ले रही हैं और ये जनूबी सूडान में नस्ली तनाज़े की बड़ी वजह बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि दिसंबर 2013 के बाद से जब से जनूबी सूडान का तनाज़ा शुरू हुआ है 50,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और अंदरून मुल्क पनाहगुज़ीनों के तौर पर 40 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। इंसानी हुकूक कमीशन के मुताबिक आबादी के 55% से ज्यादा हिस्से को, जिनमें खास तौर पर औरतें और बच्चे शामिल हैं, खाने के लिए मुनासिब मिकदार में खुराक मौजूद नहीं है। इसकी वजह यह है कि मुतहरिफ फरीक इमदादी इदारों को इन तक रसाई से रोक रहे हैं। कमीशन का कहना है कि लोगों को जानबूझकर फाका कशी का शिकार किया जा रहा है और ये काम नस्ली और सियासी खतूत पर किया जा रहा है, जो मुखालिफ बिरादरियों को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखने की एक कोशिश है। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत बदउनवानी की बुरी तरह लपेट में है। रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया कि सरकारी ओहदेदार कौमी खजाने को लूट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की आमदनी और हर महीने हासिल होने वाले महसूलात के 80% का कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए सियासतदानों ने इसे सरकारी खातों से कहीं और मुंतकिल कर दिया है। रिपोर्ट में 12 साल की उम्रों के बच्चों की फौजियों के तौर पर भर्ती, जिनसी तशद्दुद, माल मवेशियों की चोरी की जालिमाना वारदातों का भी जिक्र किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लामी इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ मुख्तसर मगर अहम खबरों पर। न्यूज़ इन ब्रीफ में शामी सूबे इटली में शामी फौज के फिजाई हमले में 33 तुर्क फौजी हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। तुर्क फौज ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए शामी फौजियों और हुकूमती अहदाफ को निशाना बनाया।
शाम के शुमाल मशरक़ी सूबा इदलिब में शामी फौज और बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। तुर्की की हिमायत याफ्ता शामी जंगजुओं ने जुमेरात को शाम के एक शुमाल मगरबी कस्बे पर फिर से कब्जा कर लिया, जिसको हाल ही में सरकारी फौज ने बागियों से छीन लिया था। ईरान में कोरोना वायरस से दहशत मुतासिरीन में ख्वातीन व खानदानी उमूर के नायब सदर मासूमा अब्दकार भी शामिल। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते हुए केसेस के बाद हिफाजती इक़दाम के तहत नमाज जुमा के इज्तिमात मनसूख कर दिए गए। हलाकतों की तादाद 2 दर्जन से ज्यादा। फिलिस्तीन ने मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबा मामले पर यूरोपीय यूनियन से मदद मांगी है। फिलिस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि अगर इसराइल ट्रंप के मशरिक़ वस्ता अमन मुआहदे पर अमल की जानिब कदम बढ़ाता है तो यूरोपीय यूनियन इसराइल के खिलाफ पाबंदी आयद करे। गजा पट्टी के इलाके में सरगर्म फिलिस्तीनी जिहादी तंजीम इस्लामी जिहाद ने इसराइल के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। पीर की शब से इस जंगबंदी पर अमल शुरू हो चुका है। ये जंगबंदी मिस्र और दीगर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के सालसी के नतीजे में अमल में आई। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने मिस्र के साबिक़ सदर हुस्नी मुबारक के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। नेतन्याहू ने अपने ताज़ियती पैगाम में हुस्नी मुबारक को अपना बेहतरीन दोस्त बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा इसराइल में अमन इस्तेहकाम की कोशिशें की। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी जेनेवा में लीबिया के मुतहरिब फरीक़ों के रहनुमाओं के दरमियान अमन मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात की वजह इन मुतहरिब ग्रुपों के दरमियान तराबलस पर कब्जे के लिए जारी लड़ाई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यमन पर आयद पाबंदियों को मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया की तरफ से पेश करदा एक करारदाद को मंजूर किया गया, जिसकी 13 मुल्कों ने हिमायत की, तहम चीन और रूस ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल नहीं किया। दहशतगर्द नेटवर्क अलकायदा की जज़ीरा-ए-नुमा अरब में सरगर्म शाख ने एक अमरीकी हमले में अपने रहनुमा कासिम अल-रीमी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। खालिद सईद बिन उमर बातरफी को अलकायदा का नया रहनुमा मुक़र्रर किया गया है। मलेशिया में सियासी बहरान के दरमियान पार्लियामेंट के स्पीकर ने नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इजलास बुलाने की महातिर मोहम्मद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कायम मकाम वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के स्पीकर से दरख्वास्त की थी। अमेरिका ने ईरानी मिसाइल प्रोग्राम में मावनत के शुबे पर 13 बैरूनी इदारों और अफराद पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। मुतासरा अफराद और कंपनियों का ताल्लुक चीन, इराक, रूस और तुर्की से है। सऊदी अरब की क्रिमिनल कोर्ट ने मुल्क से गद्दारी और ईरान के लिए जासूस के इल्जाम में 8 शहरियों को सख्त सजा सुनाई है। एक सऊदी शहरी को ईरान के लिए जासूसी और मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई, जबकि दीगर 7 अफराद को कैद की सजा सुनाई गई। बांग्लादेश ने अपने यहाँ बना लेने वाले रोहिंग्या मुहाजिरीन की एक मुतनाज़ा जजीरे पर मुंतकली एक मरतबा फिर मुलतवी कर दी है। इस बारे में इत्तला कुदरती आफात से निपटने वाली वजारत के जूनियर मिनिस्टर एनामुर रहमान ने दी है। इंडोनेशिया के मगरबी जावा में सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। हजारों मकानात और इमारतें सैलाब से ज़ेर आब आ गई। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत का बेशतर हिस्सा सैलाब से मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान, तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा में 29 फरवरी को होने वाले अमन मुआहदे का सेहरा अपने सर बांध रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान मफाहमती अमल में अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की काबिनेट ने लंदन में ज़ेर इलाज पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ की जमानत में तौसी न करने का फैसला किया है। काबीना के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ से जो तिब्बी रिपोर्ट तलब की गई थी वो फराहम नहीं की गई, जबकि दस्तयाब रिपोर्ट्स की बुनियाद पर खुसूसी कमेटी और मेडिकल बोर्ड मजीद तौसी देने के खिलाफ थे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में ताश टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें जीतने वाली टीम को 7.5 लाख रियाल इनाम दिया गया और साथ ही एक BMW कार भी तोहफे में दी गई। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने मशरिक़ वस्ता मंसूबे को गैर मुनसिफाना करार दिया है। पोप का कहना है कि गैर मुनसिफाना हल इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। पोप ने खबरदार किया है कि इससे मशरिक़ वस्ता का यह खित्ता नए तनाज़े का शिकार हो सकता है। देखिए रिपोर्ट और फिर इस पर बात करते हैं। कैथोलिक मसीहों की रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे को गैर मुनसिफाना करार देते हुए खबरदार किया है कि इससे मशरिक़ वस्ता का ये खित्ता नए तनाज़े का शिकार हो सकता है। बज़ाहिर सदर ट्रंप के पेश करदा मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे के हवाले से पोप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में गैर मुनसिफाना हल इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान नए तनाज़ात का बाइस बनेगा। पोप फ्रांसिस ने ये बात जनूबी अतालवी बंदरगाही शहर बारी में बिशप्स के एक इज्तिमा से मुलाकात के बाद कही। उन्होंने कहा कि बहरे रोम का खित्ता अदम इस्तेहकाम और तनाज़ात के बिना पर खतरात का शिकार है, जहाँ एक तरफ मशरिक़ वस्ता और दूसरी जानिब शुमाली अफ्रीकी ममालिक मुख्तलिफ नस्ली, मजहबी और दीगर गिरोहों के झगड़ों का सामना कर रहे हैं। वैसे तो पोप फ्रांसिस फ़लस्तीनियों के हुकूक और इसराइल की सलामती दोनों के हक में आवाज़ उठाते रहे हैं, ताहम ये पहला मौका है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 28 जनवरी को पेश करदा मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे के बाद पोप फ्रांसिस ने इस मौजू पर गुफ्तगू की है। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप के मंसूबे के बाद इसराइल की हाकिमियत मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों तक तस्लीम की जाएगी, जबकि फ़लस्तीनियों से कहा गया है कि वो किसी रियासत के क़याम के लिए मुतअद्दिद शराइत पर अमल करें, जिनमें एक पॉइंट ये भी शामिल है कि मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत
मशरकी यरूशलेम के नवाह में मगरबी किनारे के एक गांव में होगा। हालांकि ट्रंप का दावा है कि इस तरह मशरक़ वस्ता में कई दहाइयों से जारी तनाज़ा खत्म किया जा सकता है। ताहम फिलिस्तीनियों ने इस मंसूबे को इसराइल नवाज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर पाशा, पोप फ्रांसिस भी इससे इनकार कर रहे हैं, तो ये मंसूबा सिर्फ चुनाव जीतने तक ही रहे? सिर्फ यरूशलेम ही नहीं, कई सिटीज़ हैं जो वेस्ट बैंक में जहां क्रिश्चियंस का कंट्रोल है चर्चेस पे, और जहां जहां भी ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए थे अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए, वहाँ मोनास्ट्रीज़ हैं और काफ़ी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस और पोप के बीच में डायरेक्ट कंट्रोल है वहाँ पे। दूसरी बात, पिछले 25-30 सालों में ईस्ट जेरूसलम से और इन इलाकों में जहाँ इनके गिरजा घर हैं, तो वहाँ से कई हज़ार क्रिश्चियनों को निकाल दिया गया है, या तो उनके घरों पे कब्ज़ा कर लिया गया है, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया गया है। तो धीरे धीरे क्रिश्चियंस जो हैं, पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस, उनको मजबूर करके मुसलमान पैलेस्टीनियन की तरह भी उनको वहाँ से निकलना पे मजबूर कर दिए गए हैं। तो इस पे काफ़ी पोप ने और वेटिकन ने नाराज़गी ज़ाहिर की है। मेरे ख्याल से जनरल असेंबली में 140 मुल्क भी उसको रिजेक्ट करे हैं, और अरब लीग अपनी मीटिंग में भी उसको रिजेक्ट कर दिए हैं। हालांकि सऊदी अरब और इमारात और इजराइल के बीच में अंदरूनी ताल्लुकात बढ़ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फॉर्मली ये भी दो मुल्क इस ट्रंप प्लान को रिजेक्ट कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप को भी मालूम होगा कि ये प्लान जो है आगे जा नहीं सकता है, तो क्या वो जो एक पूरी लॉबी है वहाँ पर ज्यूइश लॉबी है, उसको कैटर करने के लिए, ताकि इंतखाबात में उनको नुकसान ना हो, उन्होंने ये मंसूबा का ऐलान किया? ये बहुत अहम मुद्दा है अमेरिकन इलेक्शन में, क्योंकि जो ज्यूइश लॉबी है वो एपेक बोल के, ये हज़ारों की तादाद में डॉलर्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी को दे रहे हैं। अब ये नवंबर में जो हो रहे हैं और नवंबर तक जो प्राइमरीज हो रहे हैं, उसमें भी ज्यूइश लॉबी बहुत अहम रोल अदा किए हैं। ज्यूइश लॉबी ने अपने सपोर्टर्स को मैनिपुलेट करके इसको इस तरह से पेश किया कि ये अमेरिकन पॉलिसी है, हालांकि इजरायली नेतन्याहू खुद जो है 3 बार चुनाव जो हो चुके हैं, अभी तक किसी नतीजे पे इजराइल में नहीं पहुंचे। ट्रंप और नेतन्याहू में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वो इस प्लान से नेतन्याहू को सपोर्ट करके उनको दोबारा इलेक्शंस में लाना चाहते हैं। हालांकि अब लिकुद पार्टी का पल्ला भारी हो गया है। और आखिर में हम आपको कोरोना वायरस से खबरदार करेंगे। चीन में कोरोना वायरस के फैलाव में बकदर कमी तो हुई है, लेकिन एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता में इसके फैलने के बाद आलमी सतह पर कोरोना वायरस के वबा की सूरत अख्तियार करने का खौफ लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। ईरान में इस मोहलिक वायरस के फैलाव में शिद्दत देखी जा रही है। ईरान के नायब वज़ीर सेहत इसका शिकार हुए, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब ने भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उम्रा को लेकर कई पाबंदियां आयद कर दी हैं। देखिए, कोरोना वायरस आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है। मुतादिद अरब ममालिक और मशरिक़ वस्ता कोरोना वायरस की जद में। ईरान में कोरोना वायरस के फैलाव में शिद्दत। चीन के शहर वुहान से फैलने वाला वायरस मुतादिद अरब ममालिक और मशरिक़ वस्ता के कुछ मुल्कों तक पहुंच चुका है। ईरान में इस मौलिक वायरस से मुतादिद अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान में तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस की वजह से मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और अब ईरान के नायब वज़ीर सेहत में भी इस पुरअसरार कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। तेहरान में हुकूमत के तर्जुमान अली रबाई के साथ की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नायब वज़ीर सेहत इराज हरारची ने खुद इसकी तस्दीक करते हुए आवाम से मोहतात रहने की अपील की। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनका मुल्क बहुत जल्द इस मौलिक वायरस पर काबू पा लेगा। हसन रूहानी ने कहा है कि ये अवाम वजारत सेहत की हिदायत पर अमल करें, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तेजी से फैलते हुए कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान और आर्मीनिया ने ईरान से मुल्हिका अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। मंगल को मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान परवाजें आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गईं। ये इक़दाम बहरीन में कोरोना वायरस का शिकार 17 अफराद की तशखीस के बाद किया गया।
जिन्होंने ईरान से दुबई के रास्ते बहरीन का सफर किया था। बहरीन में कई अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक में भी कोरोना वायरस के मुतादिद केसेस सामने आए हैं। उधर अफगानिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। अफगानिस्तान के वजीर सेहत फिरोजुद्दीन फिरोज ने रवां हफ्ते सुबह हेरात में 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक की थी, जबकि इसके फैलने का अंदेशा जाहिर किया गया था। कुवैत में भी कोरोना वायरस में मुब्तला मुतादिद अफराद की तस्दीक की गई है। मशरिक़ वस्ता के मुल्क इजराइल में कोरोना वायरस की वजह से ईस्टर के मौके पर सयाहों में काफी खौफ और दहशत का माहौल है और यरूशलेम पहुंचने वाले सयाहों की तादाद कम नजर आ रही है। इजराइल में मुतादिद अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला है। ओमान में भी कोरोना वायरस के मुतादिद मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से अरब ममालिक और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक तो मुतासिर हैं ही, अब ये अफ्रीकी मुल्क अल्जीरिया भी पहुंच चुका है। दुनिया के माहिरीन सेहत ने इस मोहलिक वायरस के फैलने पर तशवीश का इजहार किया है। कोरोना वायरस ने उम्रे की अदायगी को भी मुतासिर कर दिया है। कोरोना वायरस के फैलाव की इलाकाई सूरत हाल को देखते हुए सऊदी हुक्काम ने 27 फरवरी से कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में उम्रे के वीजा का इजरा मुअत्तल कर दिया है। सऊदी वजारत खारजा ने इस तनाजुर में ये वजाहत भी की है कि सयाहती वीज़ों पर भी पाबंदी आयद की गई है, लेकिन ये पाबंदी आर्जी है। हालांकि वीजा मुअत्तली के हुक्मनामे तक सऊदी अरब में इस बीमारी में मुब्तला किसी भी मरीज की निशानदही नहीं हुई है, लेकिन वायरस के तेजी से फैलाव ने सऊदी हुक्काम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अगले हफ्ते तक खबरदार रहिए, बेदार रहिए। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।